Hello students, welcome back to our another session, Unit 3, topic PV Chalet. Okay, so today we are going to cover topic PV Chalet, Unit 3. Okay, so this is the topic from Unit 3. Okay, and we have mentioned it is mentioned in our syllabus PV Chalet or to the west wind. Okay, so today we are going to see the east wind, and for here I have bring you this cover page. Okay, so some lines are depicted, hope you are able, but if you are not able to see the screen, I can pronounce it. Oh wild west wind, thou breath of an autumn being, though from whose unseen presence the leaves dead and driven like ghost from an enchanted feeling. Okay, so this is a very important point, we will see. I have mentioned it in later videos. So before diving in to this particular work, I would like to brief you about the all important works of PV Chalet, because you know anything can be asked in your assistant professor. It is not necessary that all those writers are mentioned only you can cover, but I believe we have to cover all the essential components as well, as because it will help you in your interview. Okay, and also you will have a better idea. So we have some important works of PV Chalet. So सबसे important जो भी वर्क है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनको देखते चलिए. ओके, जो सबसे पहला important वर्क है ओजामेंडियस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. PV Chalet आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि डेट ऑफ द पब्लिकेशन एंड व्हेन इट इज रिटन. ओके, नाउ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे कभी कभार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, PV Chalet का एक अनफिनिश्ड वर्क बताइए क्या है. तो द ट्रम्प ऑफ लाइफ इज द अनफिनिश्ड वर्क ऑफ PV Chalet. एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ओड टू द वेस्ट विंड, AP सिलेबस में ये दिया हुआ है और यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं. देन देर इज अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क पब्लिश्ड इन 1820 that is Trophimus Unbound. Then very important poem To the Skylark, it is also in our assistant professor syllabus. Okay, so these two are in our syllabus, and these are the important works of him. Then Adonis. Okay, music, these are the minor works. The Revolt of Islam, it is very important. The Revolt of Islam, who wrote this work? This work is written by PV Chalet. Then this work is not important. Then Alastair is important. The Cloud, Kuhn Mav, very important work. Long visionary poem hai, it is also important. Then The Mask of Anarchy. Then The Sensi, which is published in 1819, a verse in drama hai. So if there is a question, tell me a work of PV Chalet which is verse in drama, the right answer is The Sensi. Okay, are you clear with it? Okay, this is the important works, and we have seen that two works are mentioned in our syllabus. Number first is Ode to the West Wind, and second one is To the Skylark. Okay, great. Now we will have the introduction part as we are doing so. Okay, so थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं PV Chalet का. कौन थे ये, क्या काम करते थे, क्या कैसे यहाँ लिटरेचर में क्या कर रहे हैं और कैसे क्या हुआ, सब जानते हैं इस वीडियो में. और सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे कि there is a very important personality named William Godwin, and he is father-in-law of PV Chalet. He is really very political powerful man. Okay, in Britain. Okay, so we all know that PV Chalet, John Keats, William Wordsworth, they all are just like a friends. Okay, so ये दोस्त थे, they do meetings and several things. Okay, and I have already told you in my previous session about the Lake District poet. Okay, all those people who established themselves in Lake District, they called as lake poets, like PV Chalet, not PV Chalet, William Wordsworth, S.T. Coleridge, Dorothy Wordsworth, all these writers. Okay, now Chalet's theory of economics and morality has profound influence on Karl Marx. So हम ऐसा Karl Marx को पढ़ते हैं. Okay, who have
who have given the Marxist theory. Okay, so he himself is influenced by the P.V. Saleh, and then we have important name that is Leo Tolstoy, and then we have Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi is also influenced by the P.V. Saleh. Okay, this is the information that whom they have means P.V. Saleh have influenced how many important personalities of the world. First one is Karl Marx, then Leo Tolstoy, then महात्मा गांधी. Then अब सबसे important बात यहाँ पे देखने वाली ये है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय हेनरी थोरेau इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पीवी शैली. सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमने देखा, ये गांधी जी इंडिया में लेके आते हैं, और ये जो चीज़ है ये कहाँ पे डेवलप्ड हुई, ये हुई हेनरी थोरेau की वजह से. और इस व्यक्ति ने, ये व्यक्ति कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड हुआ, ये हुआ पीवी शैली से. तो आप देख सकते हैं एक सर्कल है यहाँ पे सेंटर में सैले हैं, और ये कितने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, है ना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देन अब थोड़ी सी बात करते हैं. तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ, एक सक्सेस नाम की जगह थी, यहाँ पे इनका जन्म होता है. एंड हिज फर्स्ट पब्लिकेशन वाज द गोथिक नोवेल. अगर कोई पूछता है व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट पब्लिशन गोथिक नोवेल बाय पीवी शैली, द आंसर इज Zarathustra, a romance, which is published in 1810. Okay, very important information, you can write it down. Okay, so now we will see another point, which is in 1810 Shelley published original poetry by Victor and Cesare. Okay, so अब वक्त आता है 1810 का, और यहाँ पे क्या, ये अभी हम देख सकते हैं ये रोमांटिक पीरियड चल रहा है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, रोमांटिक पीरियड 1798 to 1837, correct. And you can see here 1810 Shelley published original poetry by Victor and Cesare along with his sister Elizabeth. हमें यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है, इनका सिस्टर का क्या नाम था, एलिजाबेथ नाम था. and this work is published during the romantic period, so of course it's belong to the romantic age. so many romantical elements we have already talked about it in the last session. so now let's move further. अब इनकी पढ़ाई होती है ऑक्सफोर्ड से, और जब वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे होते हैं तो एक कलेक्शन ऑफ वर्सेस, यू नो, कलेक्शन ऑफ वर्सेस इफ सम 2 lines 4 lines written, it is known as verse, where we have rhyming schemes, these things. Okay, now okay, so our work name is Posthumous Fragments of Margaret Nicholas with Thomas Jeffrey Hawkes. so ये क्या करते हैं, एक कलेक्शन ऑफ वर्स पब्लिश करते हैं. ओके, ये वर्क का नाम है. ओके, एंड किसके साथ मिलकर करते हैं, एक पर्सन होते हैं थॉमस जेफरसन हॉग, इनके साथ. ओके, दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट आई वांट टू गिव यू. यू कैन नोट इट डाउन और आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स. I wish you are going through each and every point which I am telling you, as well as you are following, and as well as you are watching YouTube videos where you can see so many important writers by line, as well as by yourself try to practice some questions. Okay, now let's move further and we will see some more points that will be helpful for us for cracking the assistant professor examination. so now what we have, Matthew Arnold. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ राइटर्स हैं जो इनके बारे में कहते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या कौन क्या कहता है. सो मैथ्यू अर्नोल्ड आपको पता ही होगा, ही इज़ द विक्टोरियन पोएट. ओके, assess Shelley as the intellectual angel and ineffectual angel. किस पीवी शैली को किसके द्वारा कहा गया है, मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा कहा गया है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कैन बी आस्क्ड. ओके, देन Shelley's The Cenci is dedicated to Leigh Hunt. I have already told you about this particular work, The Cenci. I have already told you. ओके, एंड अब ये वर्क किसको डेडिकेटेड है, लीग हंट. ये भी एक ग्रेट राइटर हैं, लीग हंट. भले ही ये हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में नहीं है, बट यूजीसी नेट इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है. ओके, सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर नेट और सेट एग्जामिनेशन, प्लीज़ गो थ्रू द लीग हंट मेजर वर्क्स. and now let's move further and we will see
there is a in Mount Blanc, there is a one particular work named as Mount Blanc. Shelley claims to have pondered questions of the historical inevitability. Okay, so historical inevitability के बारे में किस बुक में कहा गया है? Mount Blanc. Okay, I hope you are writing it down or you are taking the screenshot. Okay, so now there is one work I have already told you, the Revolt of Islam, which is really very important work of P.V. Shelley. And if I talked about who this work is dedicated to, whom, the answer is Mary Shelley. Mary Shelley कौन है? She is the wife of the P.V. Shelley. Okay, and his father name is William Godwin, who is the father-in-law of P.V. Shelley, which we have discussed in the introduction. Okay, अब मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स था, एक चैन थी, तो इसमें एक चैन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि बेरियन होते हैं, लॉर्ड बेरियन, रोमांटिक पोएट, इंट्रोड्यूस शैली टू कीट्स। ये बेरियन जो होते हैं ये कीट्स के भी दोस्त होते हैं, शैली के भी दोस्त होते हैं, और ये शैली को कीट्स से मिलाते हैं। अब आपको इनकी पोएम में थोड़ा सा इन्फ्लुएंस भी दिखेगा, है ना, देखते हैं। शैलीज डेथ कम इन 1822। अब शैली, इफ आई टॉक अबाउट द डेथ, शैली का निधन कब हो जाता है? 1822। ओके, बाय ड्राइंग, बाय सेलिंग अक्रॉस द बे ऑफ स्पेंजिया, और बाय डूबने से इनकी मौत हो जाती है। Hudson called Shelley dreamers of a dream. Now one more important point, who called Shelley as the dreamers of dream? Hudson. Okay, now in 1811 Shelley published his second Gothic novel. Ab I have already told you about the Zoroaster. Now Zoroaster. Okay, now we have another Gothic novel. ये जो रोमांटिक एज में आपको बहुत सारे गोथिक नोवेल मिलेंगे। मैरी शैली की आपको फ्रैंकेनस्टाइन के बारे में तो पता ही होगा, है ना। ऐसे ही पीवी शैली भी लिखते थे। एक देयर वाज वन कंपटीशन बिटवीन 3 पीपल, मैरी शैली, पीवी शैली, एंड यू हैव टू टेल मी द वन नेम। ओके, जो इस कंपटीशन में थे, और इनमें से जिसकी भी सबसे अच्छी बेस्ट वर्क होगी वो पब्लिश होती। तो इस कंपटीशन को मैरी शैली ने जीत लिया था, और फ्रैंकेनस्टाइन है। फ्रैंकेनस्टाइन की अगर मैं प्रीफेस की बात करूं तो ये किसने लिखा है? पीवी शैली ने लिखा है, उनके पति के द्वारा लिखा गया है। ओके, दीज आर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। 1811 आता है, शैली पब्लिश्ड सेकेंड गोथिक नोवेल जिसका नाम है सेंट इरविनी, और इसको एक और नाम से जानते हैं, द रोसक्रूशियन। ओके, एंड पम्फलेट भी होता है, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेसेसिटी ऑफ द एथिज्म ही गेट द अटेंशन ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। और जब ये वर्क पब्लिश करते हैं जिसका नाम है नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, एक अटेंशन मिलता है, और अटेंशन कहाँ से मिलता है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अटेंशन मिलता है इनको। एंड ही वॉज आस्क्ड टू स्टॉप द पम्फलेट, और पम्फलेट को बोलते हैं, स्टॉप करिए आप अपने पम्फलेट का। पम्फलेट का क्या नाम था? द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, है ना। So now he was asked to stop the pamphlet. He refused and he was expelled from the university along with Hogg. Thomas Hogg, I have already told you, इन दोनों को बोलते हैं कि पब्लिकेशन बंद करिए, बट ये बंद नहीं करते हैं, and then they were dismissed from the University of Oxford. Now what happened? Shelley called Elizabeth Hesher, a 20-year-old male school teacher, the sister of my shawl and my। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एक पर्सन होती है जिनका नाम होता है एलिजाबेथ हेचनर, एंड शी इज़ 28 ईयर्स ओल्ड अनमैरिड स्कूल टीचर। एक स्कूल टीचर होती है 28 ईयर्स की, और इन्हें ये क्या कहते हैं? सिस्टर ऑफ माई सॉल। नॉट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट बट जस्ट अ बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस। नाउ वी विल मूव फर्दर। Okay, so let's talk about some personal life. Shelley was totally unhappy with his marriage to Harriet and abandoned her in 1814. She was married to Harriet, but Shelley was not unhappy. So you can see so many writers in the romantic period which are not happy. Some writers have married four times, 5 times, and they just I don't know what happened, but this is not possible in India. Okay, if you are reading some
Indian writers you cannot see in their biographies that they have married 4 times, 5 times, 7 times, but when you going through the other literature, most of European writers have married so many times. Okay, so why they married? Okay, so वो उनको छोड़ देते हैं 1814 में, और ये जो इनकी वाइफ होती है सुसाइड कर लेती है 2 साल बाद 1816 में. ओके, सो नाउ गॉडविन वाज सैलीज मेंटर, फादर इन लॉ गॉडविन मेंटर एट एटलन कॉलेज. ही वाज निकनेम्ड एज द मैड शैले. अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान से सुनिए. तो इसका अगर कहते हैं, अगर मैड शैली का नाम बताइए कहाँ पे पढ़ा, तो एट एटलन कॉलेज में जब ये पढ़ते थे तब इनको मैड शैले, पागल शैले बोलते थे. पागल है क्या, है ना. ओके, सैली मैरिड मैरियन वॉन्सक्रॉफ्ट. ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर इज देयर, मैरी वॉन्स्टोनक्राफ्ट. अगर आप फीमेल, अब अगर हम क्रिटिसिज्म में जाएं तो हम फेमिनिज्म के 4 पार्ट्स देखते हैं. ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज हेयर वेयर शी इज प्रोड्यूस सो मेनी वर्क एंड शी इज द मदर ऑफ मैरी शैले. ओके, मैरी शैले का क्या नाम होता है? मैरी वॉन्स्टोनक्राफ्ट. और फिर ये टाइटल ये वाला छोड़ के ये फिर शैले लगाने लगते हैं क्योंकि शी इज़ द वाइफ ऑफ पीबी शैले. दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. ऑन हिज ग्रेव द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम शेक्सपियर द टेम्पेस्ट. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इनकी बहुत सारे आपने देखा होगा क्वेश्चंस पूछते हैं कि ग्रेव में बताइए कि कौन सी लाइन्स लिखी हैं, कहाँ से लिखी हैं. तो आपसे पीबी शैले के बारे में भी पूछ सकते हैं कि बताइए कि इनकी लाइन्स कहाँ से लिखी हुई हैं, है ना. तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे शेक्सपियर्स की जो टेम्पेस्ट थी उनसे लाइन लिखी है. और ये लाइन को हम जरा देख लेते हैं. Nothing of him that doth fade, but doth suffer a sea change into something rich and strange. Okay, these are the mentioned on his grave. He wrote preface to his wife's Frankenstein. I have already told you. Okay, preface लिखते हैं ये. A.C. Swinburne called Shelley a perfect singing god. अब एक और पॉइंट आता है कि a perfect singing god. a perfect singing god पीवी शैले को कौन बोलता है? There is one person named as A.C. Swinburne. ओके, हिज फेमस लाइन, अगर हम बात करते हैं हमारे वर्क है टू द साइलैग जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में है, उनकी कुछ फेमस लाइन है. आर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज एंड टेल दैट सैडेस्ट थॉट. हमारे जो स्वीट सॉन्ग्स हैं ना वो हमारे सबसे दुखद विचार को व्यक्त करते हैं. ओके, दीज इन लाइनों का मतलब है. अभी हम पोएम है आगे, पोम. ओके, सो वी विल गो थ्रू इट, सो वरी नॉट. लेट्स मूव फर्दर एंड वी विल सी आवर नेक्स्ट स्लाइड एंड हैव सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट हिम. ओके, सो अब थोड़ी सी सोनेट की बात हो जाए तो how many total sonnet P.V. Shelley wrote? So he wrote 18 sonnets. We have already told about the pamphlet necessity of ethicism. इसमें ये लिखते हैं देयर इज़ नो, बहुत ही ऑफेंडेड लाइनें लिख रहे हैं इसीलिए इनको निकाला गया था. थॉमस हॉक के साथ लिखते हैं देयर इज़ नो गॉड. यहाँ देयर इज़ नो गॉड, कोई भी भगवान नहीं है. दिस निगेशन मस्ट बी अंडरस्टूड सोली टू अफेक्ट द क्रिएटिविटी डाइटी. द हाइपोथेसिस ऑफ अ प्रिवेडिंग स्पिरिट को इटर्नल विद द यूनिवर्स रिमेन्स अनशेकन. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. एंड ये लाइन कहाँ पे मिलेगी आपको? इनके पैम्पलेट में. दिस इज द पैम्पलेट. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. Shelley's The Devil's Walk, a ballad, is a satirical attack and criticism of the British government by the Shelley. It was the major poetic work published in 1812. There is a one work named The Devil's Walk. एक ये ballad है. Okay, so poems के बहुत सारे टाइप्स होते थे, है ना. बलाड्स होते थे, उसके बाद सोनेट्स होते थे, है ना. एलर्जी होती थी, किसी की डेथ पे लिखते हैं तो एलर्जी लिखते हैं. ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द पोएम्स. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, सो आई थिंक यू शुड नो इट, राइट, कि क्या क्या होता है. मतलब
you know the all the types of the poem. Okay, so this is the ballad A Devil's Walk. कब published हुई है? 1812 में, 1812. Okay, then we have an work जिसका ग्रीक टाइटल है, जिसको कोई आई हैव ऑलरेडी मेंशन यू इन माय फर्स्ट स्लाइड, द नंबर वन वर्क. ओके, एपिसाइकोडियन, एपिसाइकोडियन. ओके, जिसका क्या मतलब होता है? लिटिल सोल. It is a major poetic work published in 1821 and this work is published when 1821 में ये वर्क पब्लिश होता है ना, 1821 में ये वर्क पब्लिश होता है. देन इसका एक सबटाइटल भी मिलता है आपको, एक लंबा सा, बट ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है. बट लेट्स सी. वर्सेस एड्रेस टू द नोवेल एंड द अनफॉर्चुनेट लेडी एमला वी नाउ इम्प्रिजन्ड इन द कॉन्वेंट. देखिए, जो भी सबटाइटल होगा ना, वो एक आपको एकदम शॉर्ट में चीज़ें बताएगा कि ये वर्क किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में है ना. सो sometimes if there is a short subtitle it may be asked in your examination, but if you see such a long paragraph, maybe in net examination you will be asked, but I have never seen in previous assistant professor examination कि ऐसे कुछ questions हैं. तो but just for your information you can have it, otherwise it's okay. Sally's famous quote is to the Scylla. एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, अभी हम जब पोएम पढ़ेंगे तो देखेंगे. पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ ले रहे हैं, थोड़ा देखते हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस लाइन in my previous slide also. One more time, very important point, that is the reason why I have added this thing in this slide also. Hope is the strong, justice and truth their winged child have found. Very important line. और it is the epigraph on the cover page of, ये epigraph है. what is epigraph? जो एक छोटे से पॉइंट्स कोट्स में हमारे बुक के ऊपर रहता है, that is called as epigraph. एंड कवर पेज पे था, नाम है द मेस्क्यू ऑफ एनार्ची इज टेकन फ्रॉम द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम. वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, not mentioned in our syllabus but very important work if you are a student of English literature. ओके, सो यहाँ पे मैंने पूरी वर्क को अच्छे से लिख दिया है. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. अभी हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, कौन थे पीबी सैली, उनकी बायोग्राफी जान ली, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लिया. It took me only 20 minutes to cover the PBCLA introduction part, and now we are here to see all the works and all details in only single slide. So I have already told you Just Rosie, it is an romance and it is published in 1810. Okay, then we have also talked about the original poetry by Victor and Gazelle which is also published in the same year. अब हम इसको मैंने थोड़ा सा अरेंज कर दिया है कि एकदम लाइन बाय लाइन, आपको कभी परेशानी नहीं हो अगर क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, है ना, आप देख सकते हैं. सो these two works are also after publication of these two works. फिर ये दो वर्क लिखते हैं सेंट एवनी, जिसका मैंने आपको बताया कि इसका एक और नाम था. ओके, 1811 में. द नेसेसिटी ऑफ एस्थेटिज्म, इट इज अ पम्पलेट, और इसको किसके साथ मिलकर लिखा था? थॉमस हॉग के साथ. किसके साथ लिखा था? थॉमस हॉग. Okay, I hope you are able to see. Okay, Thomas Hogg. Now we will have very important work, The Devil's Walk. हमने पढ़ा अभी. क्वीन मैब, a philosophical poem है. This is published in 1813. Then Alastair of the Spirit of Solitude which is published in 1815. The Demon of the World and Mountebank. I have already told you about this work. इसी का एक और टाइटल है The Demon of the World, जिसको इस वर्क के नाम से भी जाना जा सकता है. और ये कब पब्लिश हुआ था? 1816 में. Hymns to the Intellectual Beauty कब पब्लिश हुआ? 1817. 1817 में एक और इम्पोर्टेंट वर्क हुआ था पब्लिश्ड, एस.टी. कॉलरिज का. क्या नाम था? बायोग्राफिका लिटरेरिया. ओके, सो नाउ लियोन एंड कैंथिया, और इसी वर्क का एक और नाम है. क्या नाम है इस वर्क का? द रिवोल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी, अ विजन ऑफ द 19th century, एंड दिस इज ऑल्सो पब्लिश्ड इन 1817. ओके, इट वाज द एडिटेड एंड issued एज द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, इसमें
सबसे इम्पोर्टेंट कि 12 कैंटोज है, 1817 में पब्लिश हुआ था। और इस वर्क का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इससे है। इसका पहले क्या नाम था? The Revolution of the Golden City, a vision of the 19th century, but it was edited and reissued, edit of वो reissued हुआ, and फिर क्या नाम पड़ता है इसका? Revolt of Islam. Okay, very important pointers that no one can give you. I have seen thousands of YouTube videos and been through a very deep research. I didn't found this information anywhere, and on Wikipedia also you will find, do not find, but question is asked from here only. Okay, so now we have already discussed Ozymandias in the introduction part. 1818 आ जाता है वक्त, एंड इट इज़ अ सोनेट रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर। देन वी हैव प्रीफेस, लिखते हैं ये फ्रैंकिस्टीन का, और इसका फ्रैंकिस्टीन का एक और नाम है द मॉडर्न प्रोस्थेमस। ओके, और दिस वर्क इज पब्लिश इन 1818, एवरीवन नोज इट। रोसलिंड एंड हेलन, a modern eclogue, it is also published in 1818. Then the Cenci, a tragedy written in 5 acts, it is an ड्रामा भी लिखते हैं पीवी सैले, द सेंसी। और ये कितने एक्ट्स होते हैं टोटल? देर आर टोटल 5 एक्ट्स। देन ओड टू द वेस्ट विंड, AP सिलेबस में है, अभी हम देखेंगे। द मैस्की ऑफ एनार्ची, जूलियन एंड मैसडॉफ, 1819। इफ आई हैव नॉट मेंशन दिस वर्क date of the publication, then you have to find it. If I am missing something, but if you are a serious candidate, you have to find it by yourself. Okay, because you know, every time when I teach, I give task to my students. That is the reason why I miss so many things, because I want my students to, they Google it, they find some information, they should add these information in their notes, then you are going to crack the examination. Okay, so Posthumous Unbound, a lyrical drama in 4 acts। एक और मिलता है हमें, एक और ड्रामा मिलता है 4 एक्ट्स का 1820 में। ओके, व्हाट इज द नेम? पोस्थुमस अनबाउंड, अ लिरिकल ड्रामा। ड्रामा तो है, रिलिक्स भी मिलेंगी। 2 स्कायलॉग, AP में है, अभी हम आगे चलेंगे। कब पब्लिश हुआ है दिस वर्क? 1820 में। वेरी इंपॉर्टेंट डेट, प्लीज रिमेंबर इट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Then we have very important poem, Adonis, 1821. Everyone have heard of it. In graduation and post graduation, you must have gone through this poem. If you haven't gone this poem yet, please go through it. A defense of poetry. What is this defense of poetry? It is a critical theory. PV Shelley have written a work on critical theory, a defense of poetry, जिसमें वो डिफेंस करते हैं पोइट्री को। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि some charges were on their poetry की पोइट्री अच्छी नहीं होती है। You have to name the school who have put it these charges, then PV Shelley have to write something for it. Okay, very important. You have to also tell me the date of publication of this. And how will you tell me these things? You can either write it down in your notes and then comment it, so that so many people will read your comment and will have the information. Okay, so now let's move further. एपिस चिलोंडियन हेलास, a lyrical एक और ड्रामा मिलता है 1820 में। I'm sorry, I'm not able to pronounce it. It is written on the screen, you can pronounce it. Okay, the trump of life, very important word, but it is unfinished. उनकी डेथ ही हो जाती है। कब डेथ हो जाती है? 1822। Okay, 1822. Okay, so now the trump of life is there. England in 1919, it is a sonnet, एक वर्क लिखते हैं England in 1819। क्या, कितना अच्छा टाइटल है ना। Okay, this information very important information. Without any wasting our time, we will move further. We will see another point. आ जाते हैं हमारे वर्क पे, PV Shelley Ode to the West Wind। एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, क्योंकि हमारा यूनिट 3 में मेंशन है। यूनिट 3 AP PV Shelley Ode to the West Wind। कब लिखा गया था? 1819 में। ओके, एंड पब्लिश विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोस्टेमन। और कब पब्लिश होता है? अगले साल 1820 में। ओके, देन इट इज रिटन इन टेजरा राइम कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेंजर 3 लाइन्स, ABA, BCB, CDC। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप श्योर हो जाइए, आपके 2 नंबर पक्के हो गए असिस्टेंट प्रोफेसर में। दिस लाइन, ये इस बार मुझे लगता है क्यों बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है कि बताइए कि आउट टू द वेस्ट विंड किस में लिखा गया है। तो आंसर इज द टेजरा राइम। और टेजरा राइम पूछे क्या होता है तो कंसिस्टिंग स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स। और राइमिंग स्कीम अगर पूछें तो ABA BCB CDC। ओके, ही रोट नोट अबाउट दिस पोएम, एक हमें इनका एक नोट मिलता है, नोट पढ़ लेते हैं। दिस पोएम वाज द conceived and chiefly written in the wood that script Arno near Florence on a day when the tempestuous wind, whose temperature is once mild and animating, was collecting the vapors which poured down the autumn's all rain। अब वेस्ट विंड है, इनने कुछ ऐसे फील किया होगा ना, जब पोइट कुछ चीज़ फील करता है तभी तो वो पिरोता है वर्ड्स। व्हेन यू फील समथिंग देन ओनली यू विल राइट इट। सो ही हैव आल्सो फील एंड दिस थिंग ही फील, ये कहीं जगह पे होंगे वुड डेट स्क्रिट, एकदम नदी के किनारे, और वाह ऐसा करके मिलता है इनको। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बट दिस इंफॉर्मेशन तो आपको याद ही कर लेनी है, एकदम रट लेना है। नाउ वी विल मूव फर्दर एंड वी विल सी अब देखते हैं कि थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। द पोएम इज एड्रेस टू द वेस्ट विंड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द लोकेशन एंड व्हाट इज द सीन। आई हैव कवर्ड द पॉइंट, दैट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एंड देन द पोएम इज एड्रेस टू द वेस्ट विंड। किसको एड्रेस की गई है पोएम? द वेस्ट विंड को। ओके, सो द पोएट अपीयर्स टू द वेस्ट विंड टू इन्फ्यूज हिम विथ अ न्यू स्पिरिट। एकदम जब ये अपीयर्स होती है वेस्ट विंड, सो इनको एक न्यू स्पिरिट, एकदम नया एहसास होता है। अ न्यू पावर टू स्प्रेड हिज आइडियाज, एक इनको पावर मिल जाती है अपने आइडिया को स्प्रेड करने के लिए। द वेस्ट विंड इज द पर्सनाफाइड बोथ एज द प्रिंसिपल एंड द डिस्ट्रॉयर। वेस्ट विंड को यहाँ पे पीवी सैली ने क्या कहा है? बोथ, अ प्रिजर्वर भी कहा गया है और एक डिस्ट्रॉयर भी कहा गया है। जैसे कि आप देखेंगे जब वेस्ट विंड बहुत तेज़ चलती है या फिर कोई भी विंड बहुत तेज़ चलती है, वो तबाही भी लाती है और एक तरीके का नया एहसास, हर एक चीज़ को रिन्यू हो जाता है वहाँ पे, है ना। हर एक चीज़, जैसे पेड़ उखड़ गए, वी विल प्लांट सम ट्रीज, लाइक दिस थिंग्स विल हैपन व्हेन blow thunderstorm occurs। okay, the speaker describes the effect of west wind on land। अब इसमें स्पीकर किसके इफेक्ट बताते हैं? जमीन पर, हवा में एंड वाटर पे। the speaker wants to be like wind's ire and he implores the wind to blow his thoughts over the universe so that they might become seeds to cause new birth। opening lines of the ode to the west wind अगर देखें तो this is the opening lines। okay, the wild west winds, thou breath of autumn's being, thou from whose unseen presence that leaves deaths। These are the opening lines. I have mentioned the poem, don't worry, we will see। ठीक है, ये वेस्ट विंड को वाइल्ड कहते हैं, वाइल्ड। आप भी वाइल्ड गैस करते हैं ना जब क्वेश्चन पेपर मैं सेट करता हूँ या फिर कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो। वाइल्ड वेस्ट विंड ऑफ ऑटम विच स्कैटर्स द डेड लीव्स एंड स्प्रेड्स सीड्स टू डेट मे हैव नर्चर्ड बाय द स्प्रिंग एंड आज द विंड्स द डिस्ट्रॉयर एंड द प्रिजर्वर। The speaker calls the wind the drizzle of dying air and describes how it stirs up violent storms। I have already mentioned you, है ना। Again implores to hear him। Important line एक ये मिलती है, if winter comes then spring be far behind। आपसे पूछा जा सकता है ये पर्टिकुलर लाइन किस वर्क में लिखी गई है? The answer is Ode to the West Wind by P.B. Shelley, written in 1819 and published in 1820। okay, if winter comes can spring be far behind? If winter is come, summer is going on। if summer is going on then the winter is far behind। this is my line। okay, so like let's see our next slide। अब हम आ जाते हैं ओड टू द वेस्ट विंड का इंट्रोडक्शन हो गया। आपको अब क्या करना है, घर जाके क्या आप घर पे ही होंगे अगर आप ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ढूंढना है, खुद से करना है, हर एक लाइन को पढ़ना है, समझना है। यूट्यूब पे पढ़िए, आप अपने खुद से पढ़ सकते हैं, वर्ड मीनिंग खोज के वो करिए, हर एक चीज़ करिए। और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, जो भी लाइंस हैं जो मुझे लगता है कि इट कैन बी आस्क्ड इन योर
in your examination I have covered all these points. So now I will do the same for this work. To a skylark I have mentioned the photo. ये ऐसे हमारे पीवी शैली दिखते हैं। और स्काईलार्क के बारे में अगर बोलें तो ये एक बर्ड है, ओके, हवा पक्षी। Okay, so on Google I tried to find a good picture and I found this only, but it seems to you a blurry image, but it's okay. So this kind of skylark। अब हम थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे मैंने पूरी पोएम लिख दी है। अब आपको ये वाली पोएम तो मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगा, बट ये बहुत लंबी पोएम है और वो वाली जो पोएम है ओ टू द वेस्ट विंड वो आपको करनी है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग आवर टाइम वी विल मूव टू आवर पोएम टू द स्काईलार्क। एंड आई हैव ऑलरेडी ब्रीफ यू अबाउट द स्काईलार्क व्हेन इट इज़ पब्लिश्ड, ओके। और जो भी इम्पोर्टेंट लाइन्स है वो तो आप देख सकते हैं। अगर कोई पोएम से मुझसे क्वेश्चन पूछे या फिर कोई भी एग्ज़ाम अगर कोई पेपर सेट कर रहा है तो वो कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, ये आपको खुद से पूछने पड़ेंगे। इफ़ आई एम द एग्जामिनर हु इज़ टेकिंग द एग्ज़ाम ऑफ माय स्टूडेंट्स, और सो मैं इस पोएम से या फिर कोई भी चीज़ से कैसे क्वेश्चंस बनाऊंगा। ओके, देन आपको कुछ लाइंस मिलेंगी या फिर आप उनके बायोग्राफी से कुछ ऐड करेंगे या फिर आप कोई इम्पोर्टेंट लाइन उठा दें और पूछें कि बताइए ये किस वर्क में है, ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, है ना। सो यू हैव टू डू द सेम, यू हैव टू फ्रेम योर क्वेश्चन बाय योर सेल्फ एंड you can take help of Google as well as there are so many things, you know, on YouTube also you will find so many questions. So अगर आप जितने से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाते हैं फॉर्म जितने भी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के मेंशन्ड हैं, मैं बताता हूँ आपको स्ट्रेटजी। तो आपको क्या करना है, आपके जितने भी राइटर्स यूनिट 3 में मान लीजिए बहुत सारे राइटर्स मेंशन हैं, आपको कोई एक उठाना है और आपको उस पर्टिकुलर थिंग से कहीं से भी, आप पोएम से या फिर कोई ड्रामा है उससे मतलब देखिए कि आप क्वेश्चन बनाइए और आप ही उनका आंसर करिए एंड इट विल बूस्ट योर प्रिपरेशन, ओके। सो दिस इज़ द बेस्ट strategy that you can follow to crack this examination, okay। So without any wasting our time we will move further and we will see this poem line by line, okay। Hail to thee, blitz spirit, bird thou never wert. So you will see the thou, what does this mean? This mean you never wert, that from heaven or near it pourest thee full heart, purest the full heart in profuse strains of unpredictable art। बस अब पढ़ते जाइए, है ना। Higher still and higher from the earth you springest, like a cloud of fire the blue deep you wingest, and singing still though soar and soaring ever singest। You can see the rhyming scheme. What is the rhyming scheme? Sprit, near it, wet, heart, art, A B A B A, A higher fire, B A B A, A B A B A B A B A B and B, okay। So this is the way how you can check the rhyming scheme of a particular line। तो ये हमें rhyming scheme आपको गूगल करिएगा तो भी मिल जाएंगी and you can clearly see it, okay। Now in the golden lightning of the sun over, सो यहाँ पे आप जब पोएम एनालिसिस करें ना तो इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ एक पोएम, है ना। तो जैसे ये लिखा है आप क्या पढ़ेंगे इसको, दिस इज ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग दोज फ्लोट एंड रन, लाइक एन अनबॉडीड जॉय हुज रेस इज जस्ट बिगन, द पेल पर्पल even melts around the flight like a star of a heaven in the broad daylight,
thou art unseen, yet I hear the thrilling delight. तो क्या कह रहे हैं पोयम, गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द सन स्किन, जब सूरज ढलता है ना तो यू कैन, और जब उगता है, ओके, सो यू कैन सी, बहुत ही ऐसे चमक आती है, आपने अगर सुबह उठाया तो आपने विटनेस किया था। ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, एकदम बादल, अब जरा इमेजिंग करिए, ये एक दृश्य है, ये बादल है हमारे, एंड अभी अभी सुबह हुई है, यहाँ पे हमारा सन है, ओके, वेरी ब्यूटीफुल, एंड फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बर्ड, okay, this is the bird which is flying, okay, so beautiful image is creating, okay, just create, एकदम सुनहरा सुबह का वक्त है, सूरज उग रहा है, एकदम सन स्किन, सन मिल रहा है, ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, इनकी रिफ्लेक्शन हो रहा है इन ब्राइट्स पे, और दाउ यू फ्लॉस्ट एंड रन, ये जो पक्षी है ये भाग रहा है ना, thus float and run like an unbodied joy, जिसकी कोई बॉडी ही नहीं है ऐसा महसूस हो रहा, whose race is just begun, और उसकी जो दौड़ है अभी अभी शुरू हुई है, the pale purple even melts around the fright like a star of heaven, जैसे कि स्टार ऑफ हेवन आप देखेंगे बहुत सुरीला, this is the star, okay, and it is floating, just writer is feeling the same in the broad daylight, अब दिन के उजियारे में, thou art unseen, और ये जो उसे उड़ने की जो कला है ये अभी भी अनसीन है, yet I hear this thrill delight, और इन्हें ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है, ओके, so this is, ये it's so understand any poetry is not difficult, because you know, if you are not aware of these words, like why it is written like this, if you got this idea you can, आपको पोएम, इंग्लिश की पोएम एंजॉय करिएगा आप, है ना, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको बस थोड़ा सा ओल्ड इंग्लिश का और ये सब चीज़ों का पता होना चाहिए कि ऐसे क्या लिखा है और क्या है, उसके बाद आपको राइमिंग स्कीम चेक करते आना चाहिए, उसके बाद आपको मीनिंग पता होना चाहिए। अब मैं इस पोएम में देख सकता हूँ, इन द गोल्डन लाइटनिंग, ये तो हर एक कोई व्यक्ति समझ जाएगा, ऑफ द सन स्किन सन, ये यहाँ पे डिफ़िकल्ट आ गया, ओवर विच द क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, ये भी ईजी, दाउ आस्ट, दाउ मतलब क्या होता है, यू, दोस्त मीन्स float and run, oh you are, okay, like an unbodied joy whose race is just begun, ये लाइन भी सबको समझ में आ जाएगी। the pale purple, now this is difficult, you have to understand this meaning, melts around the flight, everyone can understand it, like a star of heaven, understand, in the broad daylight, understand, you art as but yet I hear the still light, understand, okay, so this is the way you have to understand the poem, okay, so now what I am going to do, I am in the next slide, I am just reading, you have to do it by yourself, and let's see how many of you can understand it by yourself, okay, because you know I have seen so many YouTube videos, they are what they are doing, they are just आपको पढ़ रहे हैं और हिंदी में समझा देते हैं और उनका रोल ख़त्म हो जाता है, बट व्हाट इज़ द सेंस, आपको हिंदी में थोड़ी ना समझना है, आपके पास एक स्किल्स होनी चाहिए ना कि आप खुद से भी पोएम लिखने लगें, आप कोई भी पोएम हो आप बिना किसी हेल्प के उसको एनालाइज करके खुद से करने लगें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द रीज़न वाई यू आर हेयर इन दिस माई क्लास, आई एम नॉट टेकिंग यू टू द डीप, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश एंड देन एक्सप्लेनिंग यू इन हिंदी, दिस इज़ रियली वेरी ओल्ड वे, एंड आई डोंट फील लाइक इट्स इंग्लिश की जो ये पोएम्स है इसको आप इंग्लिश में पढ़िए और हिंदी में समझ लीजिए और एग्ज़ाम क्रैक कर लीजिए, ऐसे अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन भी गए तो क्या फ़ायदा, है ना। सो नाउ वी विल हैव अनदर slide where you have to do it like me, जैसे मैंने एनालाइज किया, ओके, keen as are the arrows of that silver sphere whose intense lamp narrows in the white dawn clear, until we hardly see we feels that it is there, all the earth and air with the voice is loud as when night is bare from one lonely cloud, the moon rains out her beams and heaven is overflowed। इसमें डिफ़िकल्टी है क्या इस लाइन को समझने में, ऐसा मैं इसको इंग्लिश में लिखा है इसको हिंदी में समझा दूंगा आप खुश हो जाएंगे। आप ज़रा एक बार ध्यान से पढ़िए और खुद से समझिए, क्या आपको समझ नहीं आ रहा, कीन एज आर द एरोज of that silver sphere whose intense lamps narrows in the white dawn clear, until we hardly see we feel that it is there,
Very easy. If you know the meaning, you can understand what is written. Okay, all the earth and air. Okay, with the voices is loud. अब इस स्काईलैब के बारे में कह रहा है ना पोएट हमारा, तो इसको इतना डिफिकल्ट क्या है? ऑल द अर्थ एंड एयर, जो भी हमारा एयर से, इसका मतलब क्या है? पूरे एटमॉस्फेयर में जहाँ पे भी उड़ रही है, विथ द वॉइस, दी मतलब दी वॉइस इज लाउड, उसकी आवाज़ निकालते हुए पक्षी उड़ रहा है। एज व्हेन द नाइट इज बेयर, अब जब नाइट करीब होती है, नाइट आने वाली होती है, फ्रॉम वन लोनली क्लाउड, एक जैसे भटकता हुआ, आपने कभी देखा हो एक बादल पीछे छूट जाता है, वैसे इस पक्षी को बोल रहे हैं। द मून रेन्स आउट, अब रेन्स आउट बोल दिया यहाँ पे, आप घबराओ मत कि मून्स रेन डाउन, मतलब अब चांद निकल रहा है मेरे भाई। मून्स आउट, मून्स, अब यहाँ पे इसने रेन्स वर्ड इस्तेमाल किया, आप घबरा जाएंगे। हर बीम्स एंड हेवन इज ओवरफ्लोड, एंड अब जैसे ही चांद निकल रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज पहाड़, एंड यहाँ पीछे से कहीं से चांद निकल रहा है, वेरी ब्यूटीफुल दृश्य। एंड इसी दृश्य को तो पर्सोनिफाई और बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस करके ये कोई भी पोएट लिखता है। इसमें डिफ़िकल्टी कहाँ आती है स्टूडेंट को? मैं तो समझ ही नहीं पाता हूँ कि कहते हैं सर ये पोएम को समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है। वेयर इज़ द डिफ़िकल्टी? आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट यार, वेयर इज़ द डिफ़िकल्टी? अब मैंने फिर से समझा दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, अब देखते हैं फिर से, आप समझिए। अब आपकी चांस है। ओके, अब मैं नहीं समझाऊंगा। What though art we know not? What is most like thee? From rainbow clouds there flows not drop so bright to see, as from the presence showers a rain of melody, like a poet hidden in the light of thought, singing rhymes unbidden, till the world is brought. The sympathy with hopes and fear is indeed not. Okay. Like a high-born maiden in a place tower, soothing her love laden soul, its secret hour with music sweet as love, which overflows her bower, like a glown warm golden in a dwell of a dew, scattering unbeholden in aerial hue among the flowers and grass which screen it from the view. Like a rose embowered its own green leaves by warm winds deflowered. अब देखो, अब आपको डिफ़िकल्टी आने लगेगी यहाँ पे, जो लैंग्वेज है वो डिफ़िकल्ट हो रही है, करेक्ट। बट लेट्स सी, टिल द सेंट इज गिवन मेक्स फेंट विथ टू स्वीट्स दो हैवी विंगल्ड थीव्स, साउंड ऑफ वर्नल सावर्स ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास। अब देखो, ग्रास में ट्विंकलिंग ग्लास। रेन अवेकन्स द फ्लावर्स ऑल दैट एवर वाज, joyous, clear, fresh, the music but surpass. Teach us, sprite or bird, that sweet thoughts are thine, I have never heard. Praise of love or wine, that painted forth a flood raptured so divine. Chorus, chorus hymnal of triumphal chant, matched with thine would be all but an empty want, a thing wherein we feel there is some hidden want. What objects are the fountains of the happy strains? What fields or waves and or mountains? What shape of the sky or a plane? अब यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ये देखो इतने सारे वर्ड WH वर्ड्स मिल रहे हैं, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। अब यहाँ पे राइटर्स हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, चलो देखते हैं। पूछते हैं व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन? ये जो फाउंटेन है ये कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? ऑफ द हैप्पी स्ट्रेन, ये पूरा एक ही वर्ड है। ओके, दिस इज द होल क्वेश्चन। व्हाट फील्ड्स और वेजेस और माउंटेन्स? व्हाट शेप ऑफ स्काई और प्लेन? व्हाट लव ऑफ दाइन ओन काइंड? व्हाट इग्नोरेंस ऑफ पेन? ओके, दीज आर द क्वेश्चंस। अब ये देखो, अब कोई भी राइटर्स कभी भी क्वेश्चंस पूछेगा, देन ही हिमसेल्फ ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। आप जितनी भी कहानियाँ उठाई, मतलब पोएम उठाइए, पहले बहुत सारे आपको राइटर्स क्वेश्चन पूछेंगे, वो अपनी फिलोसफिकल चीज़ें आपको लास्ट में बताएंगे कि मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। अब देखते हैं आंसर मिलता है कि नहीं इन क्वेश्चनों का। with the clear keen joinance, languor cannot be, shadow of annoyance never come near thee, thou lovest but never knew love's sad satirity.
ओके, अभी तक आंसर नहीं मिला है, देखते हैं आगे। Waking or asleep, thou of death must deem things more true and deep than we mortals dream. Or how could the notes flow in such crystal stream? We look before and after and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest song are those that tells of the saddest thought. Yes, if we could scorn hate and pride and fear, if we were things born not to shed a tear, we will not have the joy we ever should come near. Better than all the measures of delight sound, better than all treasures that in books are found. The skills to a poet were thou scorner of the ground. टीच मी हाफ द ग्लैडनेस। अब ये स्काईलाइट से बोल रहे हैं कि भाई अब मुझे जीवन में बहुत संकट है और बड़ी परेशानियां हैं, तुम तो पक्षी हो, तुम तो कितना मज़ा करते हो, एंड ऑल दीज थिंग्स इज गोइंग ऑन, टीच मी हाफ ऑफ द ग्लैडनेस। ये कभी कह रहे हैं हाफ ऑफ द ग्लैडनेस इनको पढ़ाइए। डैट द ब्रेन मस्ट नो, कि हर एक ब्रेन को ये पता होना चाहिए। सच हारमोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, अब मेरे लिप्स हैं वो गुनगुनाएंगे गुनगुनाएंगे, विस्परिंग द वर्ल्ड शुड लिसन देन एंड आई एम लिसनिंग नाउ, अब पूरी दुनिया सुनेगी और मैं सुनूंगा। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम, वेरी ब्यूटीफुल पोएम टू द स्काईलार्क। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आई है और मैंने डिक्टेट किया और आप नहीं समझ पाए, तो अब इसमें मैं क्या ही कह सकता हूँ। आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं पूरी पोएम का, आप हिंदी में समरी देख सकते हैं, एंड यू कैन फॉलो योर ओन मेथड, बट दिस इज़ माई टीचिंग स्टाइल. So if I'm going to cover all these things in English and Hindi, it will take more time, and already it's been an hour, so I am summing up. This is all. I hope you enjoy this session, and at last, if you are someone who is preparing for assistant professor and want to crack the examination, you can contact me on this number. You can join my Telegram group. You can find it on YouTube only. What you have to do, there is one my channel name, Lit Mastery बाय अमन आरव। ये आप डालेंगे, आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप का भी मिल जाएगा। आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। मेरी बुक तो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, आशा करते हैं आप तक पहुंच चुकी होगी। अगर आपने बुक नहीं ली है तो आप जाके वो बुक को लीजिए और आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। दैट्स ऑल, दैट्स फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, anything you want to ask, you can ask me on this number. I will help you out. Okay, bye bye, take care, see you, thank you so much.